Audio Jungle. So welcome all for our sixth session. Uh, so agenda today for today's agenda is to learn what are the format specified, escape sequence, and then we will write few more programs today along with you guys, you all, right? So let's start. So yesterday, like day before yesterday, you have done few assignments, right? On the previous stuff that we talked, right? Yes, sir. Yeah. So you'll feel better understanding after today's session. Okay. So everybody, please mute. Okay. So we will be starting with format specifier. So format specifier is a very good concept given by C to display the inputs or whatever way we want to display, right? For example, suppose you want to display number, you should able to display the number, right? If you want to display the character, then you need to display character, right? Instead of character, okay. So format specifier is used for displaying your own value in the format that is expected. For example, if you accept integer number, right, or if you want to display the integer value, right, you cannot display always the hard coded value like 1 2 3, right? So you need to display all those values that is being accepted from the user, right? Or always irrespective what user send, you want to print the same value always. आप लोगों को No. आप लोगों को जो यूजर ने फीड किया हुआ वैल्यू दिखाना इज राइट थिंग, या यूजर ने कुछ भी देने दो, आप 1 2 3 ही प्रिंट करोगे, ये चलेगा क्या? नो, थैंक्स दीप्ति. Yeah. So to display accepted values from the user, you need to understand what is the type of it and how to print it, right? So to print it, these are the placeholders which will be which is used for specific type of format of data. Now data type, now to be specific, integer data type you can use %d, character data type you can use %c, decimal floating point %f, string of character. I'll come later to this point. If you don't understand few things, doesn't matter. If you understand few things, that is really good. Unsigned decimal integer is %u. If you want to print a percent sign itself, then also you have to use %. Okay. Then we have %i, which is signed decimal integer. Then %e is a scientific notation, like you must be understood that 1.23 raised to power of 10 raised to 32, for example, right? So that value will be displayed in the exponential format. So that exponential format can be displayed in scientific notation, small e and capital E, %e. %o(x) octal and hexadecimal in lowercase, %x capital is hexadecimal upper. We will see everything one by one. Okay. So next is control characters, right? So control characters in bracket escape sequence. Escape sequence is what? Certain non-printing characters as well as the backslash and the apostrophe character can be expressed in terms of escape sequence. So escape sequence is
can be used to format your output. For example, we will be doing practice of this to understand the importance of the escape character in your programming while printing the outputs, right? Until now, we haven't seen any escape sequence, but today we will be covering format specifier, we will be covering escape sequences, and then we will be doing programming so as to understand how to use it, where to use it, right? Right? Okay. This is wrong. Here it is question mark. Let me. Yeah. This is question mark. Okay. Is visible now? Yeah. Okay. So let's start with the first program. I've given you this program, right? Many people have done by taking the float as a variable name. Somebody done integer as a variable name, and they tried printing with the help of %d and %f respectively, right? So we will come to this program, but before that, I want to explain um, uh, escape sequence first, and then we will come to this program. Okay. So let's jump on this. Let me know if you can see my blue screen. Yes, sir. Is it yeah? Is it visible completely, or Yes, sir. is it Completely. complete screen? Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Sir. Yeah. Okay. So let us start. So those who don't have what I can say Turbo C installed, I would advise you to get it installed. Right? Go to Google, or I have given the link in YouTube. Some comments. So refer that and do the installation. Okay. Dipti, your installation is done. So so this is why this is CPP is coming here. This extension. Hello. This is coming because. Am I audible? Okay. Thanks, Kajri. Yeah. Thanks, Kajri. Okay. Yeah. So this CPP is nothing but C++, right? This is coming because this compiler is Turbo C++. So C++ का कंपाइलर C प्रोग्राम के लिए कभी भी चलता है, ओके, उल्टा नहीं होता है. So this is Turbo C++ compiler. So by default it will give me no name, means file has no name 01.cpp, but हमको इसको change करना है. तो इसको हम क्या करेंगे? You can go with the mouse, or you can click Alt F, and then you can see the menus. So there is a save button. Okay. आज का लेसन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा. जो मिस करेंगे, जो नहीं समझ में आया, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच. आई विल बी अपलोडिंग टुनाइट, ओके, विदाउट एनी डिले आफ्टर दिस सेशन. सो यू सेव इट F2, क्योंकि जो लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है, प्रोग्रामिंग इज वेरी फार फ्रॉम देम, राइट. जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, उनके लिए प्रोग्रामिंग तो बहुत दूर की बात है. सो फॉर देम आई एम रियली गोइंग very simple steps, so that even person who is studying in 10th or 11th or 12th, right, don't have touch of computer programming, even he can learn, right. So that is the goal. So save. Those who know the programming, they may feel what is this, is it a way to teach C? So please have patience.
you'll understand the way of understanding and learning the C, right? So click on save here. So it will ask you to give me a name. So let me give the name. Okay. I'll give program 2.c. So this is how we will give the name. Okay. So you also can be with me if you have opened the Turbo C++ compiler. जिनके पास नहीं है उन्होंने आज पहला काम करना है कि टर्बो सी इंस्टॉल करना है, उसके बिना सोना नहीं है आज, क्योंकि इसके आगे हमारा एडिटर ये रहेगा, पीपीटी कम रहेगी. समझ में आ रहा है क्या? Because I don't want you to be a PPT oriented students. I want you to be a programmatic students who can do the program on their own hand. Okay. Yeah. Thanks, Kiran, for giving me signals on chat. What is Archana saying? Archana, why no? Can you brief? If any problem? Yes, Riya, why you raise the hand? Quick. Okay. If nothing is there, I will continue. Okay. So I'll be starting very again in clean manner. Okay, just a minute. Yeah, okay. Okay. Yeah. So you understand how to minimize and maximize. Click on Alt Enter on the screen. It will get maximize or restore mode. So we will be talking about what is this first line in any C program or C plus program basically. Okay. So here hash include stdio.h. stdio means standard input output. Okay. And .h is header file. So we have multiple header files included in the C compiler. So if we want to use it, any one of them, this is the way to include in our program. ये फाइल हमने नहीं लिखी है, ये फाइल जिन्होंने कंपाइलर बनाया है उन्होंने लिखी हुई है, राइट? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट के रिलेटेड फंक्शंस है. ओके, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे मेन लिखेंगे, void मेन. मेन के आगे क्या होता है? इतना आपने लिखना है, ये आपका प्रोग्रामिंग का स्टार्ट हो गया. नाउ यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ फंक्शन मेन पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस जिस वर्ड के बाद में आया मतलब वो फंक्शन बन गया. सो हियर मेन इज अ फंक्शन. व्हाई मेन? बिकॉज मेन इज अ कॉलिंग पॉइंट फ्रॉम योर टर्बोसी कंपाइलर. ओके ओके. सो सेव प्रोग्राम सेव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? F2 दबाएंगे या Alt F save. To go to menu, you just press the Alt and red character. If suppose you want to go to Alt Edit, click on Alt E. Suppose you want to debug, Alt D, right? So I'm not going in deep depth. You can play it, right? Being a programmer. Okay. So now here, let's again do the simple program as you are done. Hello world, which is our first program. So please listen carefully, pay attention. Okay, this will help you. Okay, now compile कैसा करेंगे हम लोग? आई थिंक हम लोग टर्बो सी पे पहली बार काम कर रहे हैं, राइट? आज तो आई वांट यू टू गिव कंप्लीट अटेंशन ऑन दिस प्रोग्राम. और आज का सेशन होने के बाद में आप लोगों को ये सारे प्रोग्राम रिपीट करने हैं, राइट? प्लस जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो, इफ एनी, इसको कंपाइल करना है. क्या करेंगे कंपाइल के लिए? व्हाट आर द वेज?
सर अगर ऑप्शन है ऊपर कंपाइल करके हाँ, तो वहां पे कैसा पहुंचेंगे हम लोग? कर्सर के साथ। कर्सर कैसा लाएंगे उधर? अल्ट सी, राइट। अभी यहाँ पे देखो, आप कंपाइल लिखा है उसने, और उसके आगे वो जो की लिखा है ना, कॉम्बिनेशन राइट साइड में, अल्ट F9 इज योर शॉर्टकट. Every time you don't need to go to compile menu and then scroll down and then click. कोई जरूरत नहीं है, ये कंपाइल हो गया, राइट. प्रेस एनी की, हम लोग आ गए. अभी इसको वापस से एक बार कंपाइल कर रहा हूं मैं, अल्ट F9 के साथ. आई एम नॉट गोइंग ऑन कंपाइल मेनू नाउ. डिड आई वेंट? मैं कंपाइल मेनू पे गया क्या? अभी वापस ध्यान देना. ये कंपाइल मेनू पे गया ऐसा. मैं अभी जा रहा हूं क्या? देखिए गया क्या, बट स्टिल आई अचीव शॉर्टकट्स, राइट. शॉर्टकट की अल्ट F9. ठीक है. अब इसका आउटपुट कैसे देखेंगे हम लोग? बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्टी आती है, Yes. सर मेरे को आउटपुट दिख ही नहीं रहा है, राइट. तो इसका आउटपुट देखने के लिए आप लोगों को क्या हुआ ये? अच्छा, मैंने सिर्फ कंपाइल किया, मैंने रन किया क्या अभी तक? आप ऊपर मेनू देखो, 1 2 3, फोर्थ मेनू क्या है? रन और कंपाइल. तो अपने कोई भी सी प्रोग्राम रन करने के पहला वो कंपाइल होना चाहिए. एंड कंपाइल इज नॉट अ रन, बट रन कैन बी इम्प्लिसिट कंपाइल. कुछ समझ में आया क्या? कुछ तो जल्दी जल्दी में बात कर रहा हूं. रन मतलब क्या है? रन मतलब दो स्टेप का कॉम्बिनेशन है. एक है फर्स्ट स्टेप कंपाइल. कंपाइल सक्सेसफुल होता है तो वो रन होगा. और कंपाइल मतलब क्या है? सिर्फ कंपाइल है. अगर सक्सेस हुआ तो सक्सेस बताएगा, नहीं हुआ तो एरर बताएगा. फॉर एग्जांपल, निकाल दिया मैंने सेमीकोलन. अभी मैं अल्ट F9 कर रहा हूं, एरर दिया, राइट. प्रेस एनी की, क्या बोल रहा है वो एरर? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक टू अंडरस्टैंड हाउ, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है. तो प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे करनी है? दैट इज व्हेन योर प्रोग्रामिंग स्किल कम्स इन, राइट. तो आप इसको क्या करना है, ये जो हाईलाइटेड ग्रीन लाइन है ना, इसके ऊपर क्लिक करो आप, तो आपको वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे लाके देता है. जो नेक्स्ट स्टेटमेंट रहता है ना, एग्जीक्यूटेबल, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसने यहाँ पे लाके दिया मेरे को कर्सर में. अभी वापस देखो, आप ध्यान दो. दो एरर बोल रहा है. क्या बोल रहा है? कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग. ये उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंद हुआ कि नहीं हुआ, राइट. पहला एरर क्या बोल रहा है? C6 P2.c, ये फाइल में 6 लाइन पे कुछ उसको प्रॉब्लम नजर आ गया. ओके, तो वो वहां पे गया. ये नीचे दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये दिख रहा है क्या? ये 6 2, ये देखो, ये नीचे अभी चेंज हो रहा है. ओके, तो ये जो है, ये कॉलम नंबर दिखाता है, ये वैल्यू, और ये लाइन नंबर दिखाता है प्रोग्राम एडिटर का. इसको एडिटर बोलते हैं, टर्बोसी का एडिटर. ठीक है. इसको मैं सेमीकोलन देता हूं, वापस अल्ट F9 करता हूं, और ये हो गया और चल दिया. अभी मैंने अभी तक रन नहीं किया. अभी मैं वापस, मेरा आउटपुट स्क्रीन देखना है. क्या करना है? अल्ट F5. अल्ट F5. यहाँ पे क्या हो रहा है? पुराना मैंने जो आउटपुट प्रैक्टिस किया था आपके सेशन के पहला, वो यहाँ पे कुछ बता रहा है, राइट. ये तो हमने किया नहीं ना अभी. समझ में आ रहा है क्या? ये आउटपुट पुराना वाला दिखा रहा है वो. तो अपना आउटपुट क्लियर कैसा बताएंगे? तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए टेक्निक है. अच्छा, उसके पहला मैं इसको रन करता हूं, फिर मैं बोलता हूं आपको. अल्ट सॉरी कंट्रोल F9. एक अल्ट F9 है, कंट्रोल F9. गिव यू आउटपुट आके चला गया. आपने देखा क्या? अभी ध्यान देना आप इसके ऊपर. क्या हुआ? यस. ओके, कंट्रोल F9 फिर से. ये आउटपुट ओह सॉरी, क्या हुआ? ये अलग हो गया. ओह, एक
अल्ट बैकस्पेस, अल्ट बैकस्पेस, ठीक है। कुछ हद तक वो अंडू करता है, मैंने अंडू किया, इंसर्ट, नहीं ये नहीं करना होगा, फिर से लिखता हूँ मैं आपके लिए, डोंट वरी। हेलो वर्ल्ड डबल कोट सेमीकोलन, यहाँ पे थे हम लोग, इसको कंट्रोल F9 किया, बट मैं उसको आउटपुट अभी तक देख नहीं पाया, कहाँ गया आउटपुट, राइट। ये सबके साथ में प्रॉब्लम होता है, तो उसको देखना है अल्ट F5 से। ये देखो कितने बार आया आउटपुट, हेलो वर्ल्ड, राइट। अभी ये हेलो वर्ल्ड हमेशा मेरे को नए लाइन पे चाहिए, जब भी मैं रन करूं ये मेरे को एकदम क्लीन स्क्रीन दिखनी चाहिए। तो क्या करना है, अपन हम लोग जब हम देयर इज अ वे, हम लोगों के पास एक हैंडल दिया है उसने। अच्छा, इसको पहला हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग देखते हैं कि नए लाइन पे आ रहा है क्या। एक है अपने पास कंट्रोल सीक्वेंस /n, ये देखा था क्या आपने? हाँ, ये न्यू लाइन का क्या है, /n, बेल मतलब /a, कैरेज रिटर्न मतलब वो एंड तक जाके रुकता है लाइन के, बैकस्पेस /b, फॉर्म फील्ड f मतलब वो कंटिन्यूअस फीड करके वापस नई लाइन पे आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल टैब T/v, वर्टिकल टैब / सिंगल एपोस्ट्रोफी कैरेक्टर, बैकस्लैश मतलब बैकस्लैश प्रिंट करेगा, क्योंकि ये बैकस्लैश का एक मीनिंग है। इसके लिए अगर आपको सही में बैकस्लैश प्रिंट करना है, राइट, तो आपको बैकस्लैश 2 बार देना पड़ेगा। दिस इज प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन मार्क अगर प्रिंट करना है तो बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क करके करना है। अभी अपन देखते हैं ये सब सारी बातें। /0 मतलब नल, कुछ नहीं है उसका वैल्यू। या so quotation mark, sorry, quotation, I done a mistake again. This is quotation mark, earlier it was right. Okay, so no problem, I'll again recorrect it. So okay. Question mark, quotation mark, sorry, it's my mistake, I couldn't see perfectly. Okay, I have turbo CP. So Harshit, Ritik, you can use that. That is what I'm trying to explain. Watch carefully what I'm saying. ओके, सो ये सारे सीक्वेंसेस है। अभी हमको रिक्वायरमेंट क्या है, हमको वो हेलो वर्ल्ड कितने बार रन करेंगे ना, वो एक के बाद एक आता जा रहा है। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि उसमें एक टैब के कुछ तो स्पेसिंग मिलना चाहिए ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर आए, इसको बड़ा करने के लिए क्या करूं मैं, अभी मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करूं, मैंने बताया है आप लोगों को। Alt enter. परफेक्ट, ये सब दिमाग, हाँ, यस, Ultra enter. हाँ। So put into chat for this small answer, big answer you can talk. Okay, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, /t करते हैं, राइट। अभी क्या हुआ, कंट्रोल F9 करता हूं मैं डायरेक्ट, कंट्रोल F9, म्यूट योरसेल्फ। आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट आया नहीं है। आउटपुट के लिए क्या करना है, Run. Alt F5, ओके।
हेलो वर्ल्ड के बाद में क्या हुआ, एक कर्सर 8 स्पेस जाके रुक गया, ठीक है। अभी क्या हुआ, एंटर दबाने के साथ वो वापस आ गया। अभी अगर मैं वापस रन करता हूँ इसी प्रोग्राम को, नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो 4 स्पेस छोड़ के फिर प्रिंट करेगा। मैंने 2 बार रन किया, Alt F5, दिखा क्या, दिस इज लुकिंग गुड फ्रॉम प्रीवियस 3 रन। पहले 3 जो रन है वो सारे चिपक चिपक के आ रहे थे। ये जो एच, वर्ल्ड का डी और हेलो हेलो का एच, राइट, ये डी एच दोनों चिपक के आ रहा था, राइट। तो नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, लास्ट 3 रन में डी और एच के बीच में स्पेस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टैब, ओके। अभी अगर मेरे को ये, बट फिर भी वो सेम लाइन में जा रहा है, राइट। मेरे को वो चाहिए कि नए लाइन में आना है, तो नए लाइन में लाने के लिए इसको मेरे को ये करना है, कंट्रोल करना है। हाँ, ये अभी क्या हुआ, ये रन हुआ, पीछे आउटपुट दे दिया उसने, ये नया आउटपुट है, आउटपुट पे आया और टैब दे दिया उसने, राइट। अभी मैं क्या करता हूं, ये पुराना जो कचरा है, राइट, वो मेरे को इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो कचरे को हटाने के लिए क्या बोलते हैं, घर में जो कचरा करते हैं अपन, राइट, एवरी डे मदर यूज टू क्लीन द हाउस, राइट, ये डायरेक्ट खाना देते हैं। तो अपना भी हाउस, अपना जो प्रोग्राम है, इट इज नथिंग बट अ हाउस, यू कैन कंसीडर। तो इसमें आपके 2 हैबिट रहती है, एक तो प्रोग्राम चालू करने के पहला क्लियर करो, या तो प्रोग्राम होने के बाद में क्लियर कर दो। तो हम लोग क्या हैबिट करेंगे कि भाई उठने के साथ हम झाड़ू मारेंगे। इसका मतलब क्या कि प्रोग्राम चालू होने के पहला हम लोग कुछ भी प्रिंट करने के पहला जो पीछे पड़ा हुआ कचरा है उसको हटा देंगे हम लोग। अभी मैंने कचरा हटाने की बात किया इसको, तो अभी कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए क्या है, Alt F9, ये चल गया, राइट, ओके। तो अभी क्या करते हैं, कंट्रोल F9, आउटपुट कैसा देखेंगे, Alt F5, ये दिखा आपको, पहले से अच्छा दिख रहा है ना अभी अपने प्रोग्राम का आउटपुट। टर्बो सी का आउटपुट ऐसे ही आता है ब्लैक स्क्रीन पे, ओके, फैंसी स्क्रीन नहीं रहती इसकी, ओके। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है आप लोगों को क्विकली। सबके पास ये है क्या, ये सॉफ्टवेयर है, यस रिया, Yes. जिनके पास नहीं यस है, सर, यस। हाँ है ना, जिनके पास नहीं है, जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हो, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्लीज आप ऑनलाइन जीडीबी वाला जो लिंक है वो यूज करना, जो मैं बता रहा हूं इधर। कोई चैट में डालेगा क्या, जिन लोगों को अभी अभी भी पता नहीं है वो लोग इसको यूज कर लेंगे, या मैं डालता हूँ, चलो। जिन लोगों के पास मोबाइल है, डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं है, और जो लोगों ने मेरे प्रीवियस, या थैंक्स दिया, जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस प्रोग्राम मिस किए हैं उनके लिए ये फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ कि आप ये ऑनलाइन जीडीबी पे भी काम कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये सेम ही है, ओके। यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन वगैरह की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ओके। बट मैं टर्बो सी में ही करूंगा, आप लोगों को जहां पे करना है आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ, अल्ट एंटर किया मैंने, भाई बड़ा हो जा। अभी क्या हुआ, अभी अपने को जो आउटपुट मिल रहा है वो अपने को कैसा देखना पड़ रहा है, कैसे देखेंगे हम लोग आउटपुट को, कंट्रोल F5 किया मैंने, देखो अभी Alt F9 पहली स्टेप, दूसरी स्टेप कंट्रोल F9 रन, तीसरी स्टेप क्या है देखने के लिए, खाली स्क्रीन देखने के लिए, Alt F5. Alt F9. नो F5. F5, हाँ F5.
ये आई अल्ट F5। अभी मैं हेलो वर्ल्ड को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, कुछ तो डाल देते हैं उसके पहला। वेलकम। हाँ, ओके, 5 मिनट में अपना खत्म हो गया। एक मिनट, ये जाएगा नहीं। अल्ट एंटर किया मैंने, मैक्सिमाइज हो गई। ये लिख लेना आप, ये जो शॉर्टकट है ना प्लीज लिख लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। हाँ, ये अल्ट एंटर वाला जो है ना, यहाँ पे विंडो पे जाना, विंडो पे जाना। ये जूम जो है, सॉरी, अल्ट लिस्ट ऑन, ये जूम जो है मतलब वो बड़ा करता है। कंट्रोल F5 साइज मूव का स्केल क्लोज मैसेज आउटपुट अल्ट F5 दिख रहा है क्या? यूजर स्क्रीन मतलब अपनी ब्लैक स्क्रीन, समझ में आया? जहां पे अपने को आउटपुट देखना है। अभी हमने क्या Yes, किया? sir. अभी हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऐड किया, एक वर्ड, राइट? अब मेरे को इसको रन करना है, तो रन के अपने क्या स्टेप है? पहली Alt स्टेप, F5. Alt पहली स्टेप क्या है कंपाइल की? Alt F9. अल्ट F9। दूसरी स्टेप क्या होगी? जल्दी, कंट्रोल कंट्रोल F9 नहीं, अच्छा अल्ट F5 करके देखता हूं मैं। Alt F5. अल्ट F5 किया मैंने, दिस इज नॉट योर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। यहाँ पे प्रोग्राम रन हुआ ही नहीं, प्रोग्राम सिर्फ कंपाइल हुआ। आउटपुट क्यों नहीं आया? ये जो मैं बता रहा हूं ना, दिस यू वोंट गेट एनी इन एनी बुक। इसके लिए प्रैक्टिकल लगता है, यू अंडरस्टैंड? आप बुक पढ़ोगे, वहां पे एकदम स्ट्रेट इंस्ट्रक्शन रहते हैं, फॉलो किया तो चल जाता है, बट उसमें अगर नहीं चला तो क्या, उसका आंसर फिर अटक जाता है। देन प्रोग्रामर इन्वेस्ट इज टाइम, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, फिर वो छोड़ देता है, वापस कभी आता नहीं। फिर नहीं यार, वो अपने बस की बात नहीं है, मेरे को नहीं करना ये, ऐसा हो जाता है। बराबर? यहां तो मैंने वेलकम वेलकम हेलो वर्ल्ड लिखा है, वो पीछे क्या आया था? हेलो वर्ल्ड आया था, क्यों? We didn't save the program. अच्छा, सेव करते हैं। सेव कैसा करते हैं? File. फाइल एफ सेव, राइट? और F2 करना है। F2 किया आपने डायरेक्ट तो भी सेव होता है, ठीक है? तो सेव किया मैंने, अभी देखते हैं आउटपुट आता है क्या। वही आउटपुट है, क्या हुआ? क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा याद करो क्या क्या स्टेप है अपने। आर वी मिसिंग समथिंग? Control F9 sir. Sir, हाँ, I have typed the same code, but एक error आ रहा है. Error is कि function CLR SCR should have a prototype. ओके। तो अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे को एरर नहीं आया, बट आपको एरर अगर आ गया है तो हमको आप एक फाइल इंक्लूड करना, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या आपको? और एरर आती है ना तो डोंट स्टॉप योरसेल्फ, ओके? आपने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की। conio.h इंक्लूड करो, और इसको क्या क्या स्टेप है अपने रन करने के? पहली स्टेप क्या है, ये अभी पूरा दिमाग में रखना है आपको, ये रिपीट नहीं होगा अभी। Alt F9. पहली स्टेप है अल्ट F9। दूसरी स्टेप क्या है? कंट्रोल F9, ओके? तीसरी स्टेप क्या है? आउटपुट देखना। अरे यार क्या होगा? एक मिनट। अल्ट F9,
कंट्रोल F9 किया,